Okay. So previously we discussed about the bubble sort. Then we discussed about insertion sort. Then we discussed about the selection sort. And today we are going to discuss about the merge sort. Okay. Same here, we have in the merge sort what we have to follow step by step. First we understand we have one array of size 5 is given. So we can draw the array 0, 1, 2, 3. So the index value is 0, 1, 2, 3, and 4. And suppose I can enter the value 8, 1, 2, 6, 4. So what will be the output? The output will be becomes like this one, like 1, 2, 4, 6, and 8. So this is the our output, and this one is the our input. Now, same we can apply the bubble sort on this array. It gives same output. Insertion sort gives same output. Selection sort then gives same output, and the merge sort it also gives the same output. But why we can use the merge sort? Because of time complexity. Because of time complexity. Okay. So now it will be take the worst condition order of n square. It also gives order of n square. It also gives order of n square. But when you're talking about the merge sort, it gives the time complexity order of n log n. That means this is the lesser than all the things. Now see how. Suppose I can take n equal to, that is the n is the input size. Suppose I am taking 4. So what will become order of n square? That means the 16 second. Yes or no? Now put the order of n 4. This will be the 4 log base 2. Now these are the data structure, so I can take the log base 2, not 10. Okay, and this will be becomes 4. That means 2a square. So that we can apply the property of log if base and the whatever the value of taking that same, that might becomes 1. So we can write 4 into this automatically come here. That is the property 2 into log base 2 log 2. So it gives 8 second and it becomes 1. So now see, this time complexity of this merge sort is 8 second. This will be the 16 second. So that's why you can pick up merge sort for sorting the algorithm. Okay, now, so how the merge sort will be work? The meaning of that first understand the merge sort. भाई merge sort होता क्या है? Merge का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास दो बैग हैं, बैग B1 और बैग B2 है. Suppose I want to tell you कि can you merge this bag? So what will you do? You have to create a one bigger bag जहां आप B1 plus B2 को लिख देगा. Yes or no? So that process is called merge. That means before merging we have to divide. Yes. So here, so array is given. Suppose the array is given. I'm not talking about the size, standard size I'm talking about. So suppose 8, 1, 0, 2, 4. And this array size is becomes like a 0, 1, 2, 3, 4. That means size of array is a 5. Okay. Now, when we apply the merge sort, first we can divide the array into two halves. That means we can go for division into two halves. Now, how can divide? The important thing, भाई इसे हम लोग half में कैसे करेंगे? So I can consider the lower index. So what is the lower index of any array? 0. And then I consider the maximum index. What is the maximum index value of this array? 4. So we can add. So I can calculate the middle element. Capital M, middle element is equal to lower plus the maximum element. I can take a variable r divided by 2. That means 0 plus 4 divided by 2, because 4 by 2 gives 2. That means, sorry, so it can gives the index number 2. So I can divide the index number here. So that's, I am going to write the array like this one. So आपका array 8 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा और 0 यहाँ होगा. फिर हमारा पार्ट क्या बन गया? यहाँ पर 2 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा. So हमारा क्या हो गया? ये इंडेक्स 0, 1, 2 और ये हमारा 3 and 4. क्लियर? So इस तरह हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं. So now, but index value cannot be changed. Now that means this become L, this become R, and this become M.
सो अगर आपसे पूछा गया है कि आफ्टर वन डिवीजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 4। यस। नाउ सपोज मैं पूछूं आपसे इस एरे का, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एरे, यस या नो, दिस मीन इज द राइट हैंड साइड एरे। सो अगर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आर क्या है, 2, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पर आपका लोअर वैल्यू क्या है, 3, और आर वैल्यू क्या है, 4। यस या नो। सो based upon this one, for the lower index of left hand side array is 3 and upper index is 4, and the left hand side of array lower index is 0 and this one. Because why I am telling these things, because they are going to use in the program one by one. Now after division, when I can decide if this division should be stopped, that is the question. So we can divide further same process, L plus R divided by 2 each and every division array up to, then we have to get a single array or not, like this one. जब तक हमें इस तरह के सिंगल एलिमेंट्स नहीं मिल जाते, that means I can get here 8, I can get here 1, I can get here 0, can get 2 and 4. Then I can get all the array elements a single element, then your division will be stopped. That is no further division. Clear? Then after division, what I have to do? After division, suppose I can divide this and this one. So one by one I can merge and sort the algorithm. After merging these two, what I am getting? 1 and 8. That means I have to merge and sort. Merge and sort. Then again it will be merged. So how about again? 0, 1 and 8. And this will be the backtrack. Backtrack. That means merge, sort, follow, backtracking. Clear? So this is the process we have to follow in the merge sort. Now question is that analyze this array. First understand this array. If this is the L, this is the M, then what is this one? M plus 1. Yes or no? 2 plus 1, 3 index value. So M plus 1. Is it clear? But I can take the lower index here, M, and higher index here. Why I am taking? Because the next array value is M plus 1. Okay, now clear. Anyone doubt online? यहां तक आपको क्लियर है कि हमने डिवीजन कैसे किया? ओके, चलो, थैंक यू। अब देखिए, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द थिंग्स, देन हाउ वी कैन डिसाइड कि वी हैव टू गो फॉर द डिवीजन, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कब डिवीजन करना है, कब नहीं करना है? ये तो लास्ट स्टेज पर आएगा ना कि हमारा लास्ट। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे इफ कंडीशन, इन इफ कंडीशन lower value is always less than R, then we have to go for the division. Lower index always less than higher index. Now check here. Here, what is the lower index? 0. Higher index? No. So no division. यहाँ पे भी no division, no division. But इससे पहले जितने भी होंगे division होंगे. Yes or no? The comparison all the things this way. So that means for division we have to pass that one. So I can create one void, and here I am creating merge. Okay, I am creating a merge algorithm. Inside that I am going to write pass the element of array. Yes, then I am going to pass the element of L, and I am going to pass the element of L. So here L is lower index and R is the maximum index. Is it clear? After that, what I am going to write here, if L is less than R, then we have to perform what we have performed. In middle element is equal to, आप लिख सकते हो L plus R by 2, और इस तरह भी लिख सकते हो L, हाँ, इस तरह भी लिख सकते हो L plus R minus L by 2. ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? देखो, क्लियर? सो नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू राइट और क्रिएट अ फंक्शन। भाई जब हमारे पास ये दो एरे आ गए तो इस दोनों एरे को भी तो मर्ज करना होता है, क्योंकि बैक ट्रैक में जाके और सॉर्ट करना होता है। सो फॉर दिस पर्पस आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टू फंक्शन. आई एम गोइंग टू पुट द नेम मर्ज सॉर्ट.
I'm going to create a merge sort. This is the merge sort. Okay. Inside merge sort, I'm going to create apply array, then lower index value and the middle value. Matlab L to M. And here M plus 1 to R. So again, I'm going to repeat merge sort L M plus 1 to R. And after writing all the things, we should merge now. That means we have to merge both functions. So for this one, I'm going to create merge this one and a array left hand side, middle element and row, and close this and close this. So this process we have to follow all the time. And each and every time it will repeat this one. Sorry, this will be the merge one. Okay. Each and every time it will revision, divide, and then we can go for this one. So I need to going to explain this function value, how we can perform the task inside that one. Okay. So this one is a clear, no need to write a function. This one is also clear, this is also clear. Okay. Anyone doubt? Up to these two functions, three functions, whatever I am writing, any doubt? No doubt? Please mention your chat box, yes or no. Then I can look forward. Clear. So now, basically, if you are sitting in the interview, so they will interested to ask these 4 lines, this algorithm. Not interested to write whole algorithm. They will interested to write only this. Okay. आपको मर्ज सॉर्ट बताना है, मर्ज सॉर्ट में कौन कौन से कैसे एलिमेंट लिए और कैसे मर्ज करो, यही आपको बताना होगा. दैट इज एनफ फॉर द इंटरव्यू पर्पस. आपको कोई जरूरत नहीं है बताने की और चीजें. ठीक, चलिए. क्लियर हुआ? अब देखो, अब हमें क्या करना है. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर द void. So I am writing void and I am going to create a merge. That means हमने इस दो algorithms को जो बनाया है, इस left और right को, देखो इस left array है और that is my right array. So whatever the value of this array, we have to copy this left array and right array. So for this one, I am taking this one is the I and this one is the j, and I am going to compare I value is j. If this one, if I is less than j, in that scenario create I plus plus. If j is less than I, then you can go for the j plus plus, and we have to copy the value of I and assign that value. तभी तो हम जाके मर्ज कर पाएंगे, कहीं को कॉपी करेंगे तभी तो मर्ज होगा. So for this one, and for this one I am going to take a k value, k value, k of array, left and right, and after merging, so I have to also increase k plus plus, क्योंकि मुझे के की तो बढ़ाना है. जब मर्ज करेंगे यहाँ और यहाँ पर, तो यहाँ पर आई की, ये तो के की वैल्यू चल रही है ना लास्ट बार में, इसे ही मर्ज करना है के लेके. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू टेक मर्ज int array, int l, int m, सॉरी ओके, int m और int r हमने पास किया. सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइन किया int I, j and k. So after defining all the things, I should maintain this array size also. मुझे तो ये भी तो करना है. So हमने इसे डिफाइन किया int of n1 and int of n2. That means we can define size of this array n1 and size of this array n2. हमने ये करना है. तो अब देखो n और n2 कैसे निकालेंगे. तो हमारे पास सपोज हमने डिवीजन किया, तो हमारे पास ये आया और इस साइड हमारे पास सपोज 2 ही एलिमेंट है, तो 0 1 2 3 4. तो यहाँ पर कितना एलिमेंट का साइज है, 3 है. तो कैसे गिफ्ट मिलेगा. सपोज दिस वन इज द l, दिस वन इज द m. तो अगर हम ऐसे करते हैं m माइनस l प्लस 1 क्या आ रहा है, 2 माइनस 0 प्लस 1 3 मिल जा रहा है. सो आई एम गोइंग टू राइट, क्लियर है ना. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लॉजिक, दैट मीन्स द रीजनिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन. ओके. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट m minus l plus 1, clear. and here how can get, अगर इसमें से हम r में से m की वैल्यू घटा दे, r हमारा 4 है और मिडिल एलिमेंट क्या है, 2 है, तो हमारा ये 2 l मिल जा रहा है. तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, r माइनस m. अब यहाँ पे ये देखो ये r है, ये क्या है m प्लस 1 है, ना कि m है.
So I will consider this value m2. Clear? So now after defining, so I can define int L of n1 comma right of L2. So हमने इसकी साइज को डिफाइन कर दिया और एरे को भी डिफाइन कर दिया. Clear? So I am going to write a condition here. हमें कंपैरिजन करना है और कॉपी करना है. So for this one I am going to write. So this one I am going to write while loop if I is less than n1 and j is less than n2. Okay, so we have to perform if. What I am going to perform? Can you write? नहीं, हाँ, तो इंक्रीज करना ना आई की वैल्यू के की वैल्यू को बता I less than j. हाँ आई जे I less than j. हाँ Then increase I. हाँ Else j less than I. Then increase j. ठीक है. तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, ये तो हमारा नहीं है. पहले इससे हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट दिस एरे ना, L of I, sorry L of I, sorry L of K I have to create and R of K I have to create. पहले तो ये बनाना होगा ना, जो भी हो लेकिन ये तो साइज है ना, लेकिन K क्या है हमारा इंक्रीमेंट वैल्यू K1 K2. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर हमें क्रिएट करना होगा फॉर लूप I इक्वल टू 0, I लेस देन n1 एंड I प्लस प्लस. और इसके अंदर हमें क्या सेट करना होगा, इसके अंदर हमें सेट करना होगा L ऑफ I की वैल्यू हमें क्या पुट करनी होगी, A ऑफ L प्लस I की वैल्यू. समझा क्या? तो L 0 है और I भी 0 है, तो वो हमारा किस में चला गया, L ऑफ I की जगह. सेम इसी तरह हमें फॉर ऑफ J इक्वल टू 0 एंड J इज लेस देन 2 एंड J प्लस प्लस. और यहाँ पे क्या लिखना होगा, R ऑफ J इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, A ऑफ बताओ J प्लस I नहीं, M प्लस 1 प्लस J. M प्लस 1 प्लस J, वहां की वैल्यू इसमें डालनी है ना. इज इट क्लियर? ये धर्म बेहरा कोड 1. ओके, इज इट क्लियर हाउ टू कॉपी दिस एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरे एंड राइट हैंड साइड ऑफ एरे? ओके हित. Yeah, so this one after creating, so after this one what I'm going to write, now I'm going to write a while loop. तो while loop में क्या लिखेंगे, कंपैरिजन कर. हाँ बोलो. हाँ. So now see देखो, तो before that I have to set, आपको हमें सेट करना होगा I की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है, J से. फिर उसी तरह हमें J की वैल्यू सेट करना होगा, और जब K की वैल्यू सेट करेंगे तो ये हमेशा किससे स्टार्ट होगी, लोअर इंडेक्स वैल्यू. समझ में आ गया, क्योंकि डुप्लीकेशन ना हो. हाँ ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे while loop. So I am going to write a while loop L of I, so not L of I am going to write here. देखो, क्योंकि मुझे यहाँ से इसको ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो यहाँ से मुझे यहाँ n1 मूव करना है और यहाँ से यहाँ n2 मूव करना है, और हमारा I यहाँ है, तो इससे छोटा होना चाहिए. I should be less than n12 and J should be less than n2. Clear? After that I am going to write if. अब देखो ये किस में है, L of I है, तो I am going to write L of I should be less than what of R of J, less than equal to J. Clear? So हमें क्या करना है, अब हमें एक एरे, इमेजिनरी एरे जिस टाइप का एरे होगा, फिर उसको L of K में करना है. क्या करना है, एरे ऑफ K में हमें क्या पुट कर देना है, L of I की वैल्यू. क्लियर? एंड इसे क्लोज कर देना है, और इसमें क्या कर देना है, I प्लस प्लस बढ़ा देना है. अब देखो अगर एल्स, अगर मान लो ये नहीं हुआ तो क्या कर देना है हमें, हाँ R ऑफ J ना, R ऑफ J और यहाँ पर J प्लस प्लस, एंड ये भी क्लोज कर देना है. क्लियर? सो इस वाइल लूप को क्लोज करने से पहले इनसाइड दैट वन व्हाट वी हैव टू राइट, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस वन वी हैव टू ऑलवेज राइट K प्लस प्लस, एंड फिर आपको इसको क्लोज कर देना है, पूरे को फंक्शन को क्लोज करना है. समझ गया? K प्लस प्लस इसके अंदर नहीं होगा, K प्लस इसके बाहर होगा. अब आ रहा है ना?
क्योंकि कॉपी होने के बाद। क्लियर है ना? अब देखो, हो सकता है कि आई आपका यहाँ पहुंच जाए और जे भी में भी हो सकता है, तो इसके बाद तो कोई कंपैरिजन होगा नहीं। तो अब इस चीज को एज इट इज कॉपी करना है सॉर्टिंग के फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप आई इज लेस देन n1 एंड देन क्लियर। सो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए। सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू राइट while i is less than n1। जब ये हमारा, सपोज कि हमारा कंपैरिजन नहीं हुआ, सिर्फ जे का कंपैरिजन हुआ, जे ही छोटे एलिमेंट थे, आई में नहीं थे, तो हमें किसी को तो कॉपी करना होगा ना, इसका कंपैरिजन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हमने उसके लिए क्या लिखा, जो हमारा ए ऑफ के है उसमें हमें क्या पुट कर देना है, एल ऑफ आई को, और यहाँ आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस। सिमिलरली उसी तरह वाइल लूप में हमें क्या करना है, वाइल जे इज लेस देन एन टू, हमें क्या करना है, ए ऑफ के में क्या पुट कर देना है, आर ऑफ जे और जे प्लस प्लस और के प्लस प्लस। मतलब वो कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक एंड फाइनली क्लोज ऑल द। क्लियर हो गया? सो दैट इज द कोड। इज इट क्लियर? कोड समझ में आया? Online, anyone doubt? So please write this code and share with me, please. So आप इसको, आपको कोड में सजाना है, आप कैसे से, ये हो गया है, ये हो गया कहाँ तक है? रुको ना, मैं ऐसे करता हूँ। पास में जाके आप ले लूँगा, इजी रहेगा, जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नहीं, अब तो कुछ नहीं, अब बाकी आपको सजाना है, क्या कर रहे हो? Okay, please write this code and share with me. Okay. Yeah. Okay. अरे स्टूडेंट लोग यूज नहीं कर सकते कंप्यूटर को?
અત્યારે મેલ પર ऑप्शन पूछ रहे हैं इसमें फ्रीडम है ना यहाँ पे मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना है किसी को रिप्लाई नहीं देना है और पैसे का तो कम मिलते नहीं है बहुत ज़्यादा है और वैसे जब कंपनी में रहोगे तो फिर मान लो कंपनी से तुम निकल जाते हो फिर किसी काम नहीं यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन है हमारा वाइड एरिया है अगर मान लो कि सपोज मैं कंपनी की भी सोचूंगा तो मान लो कि डेटा साइंस का कोर्स कर लिया तो कोर्स कर लिया मेरे पास IIT की डिग्री है तो वैसे ही मिल जाएगा तो बहुत सारे इसलिए बोला ना पढ़ो अच्छे से अगर जॉब कर रहे हैं IT सेक्टर में तो पढ़ना पड़ेगा इधर जॉब नहीं मिलेगा अच्छे पैकेज अगर अच्छे पैकेज से नहीं मिलेगा तो फिर मेहनत करना पड़ेगा उस पैकेज से पहुँचते 5 साल लग जाएंगे अगर सारे नहीं जिस 4 साल कर लिए तो 5 साल मेहनत हाँ हो सकता है कि तुम 10 लाख का पैकेज नहीं कर पाओ लेकिन 8 लाख तक निकाल सकते दैट इज स्टैंडर्ड फिर आपको टेंशन नहीं लेगी 5 लाख से जहाँ नीचे आती है स्टैंडर्ड लाइफ की प्रॉब्लम है 5 लाख से ओवर है किसी भी अप्लाई नहीं किसी भी एरिया हम नॉट बात करते हैं कि पर्टिकुलरली किसी भी लाइन में अगर 5 लाख से नीचे का है तो यू आर इन ट्रबल 5 लाख से ऊपर है यू आर स्टैंडर्ड 50,000 रुपये कम नहीं होगा दोस्त बोल
आएगी तो यहाँ पे कंप्लेंट करवाने दीजिए The reason I gave was okay. रिक्वेस्ट के वाला सजेशन एंड कंप्लेंट
Please complete this code and share with me. Anyone completed? Like Jeet, Ashish Kumar, Urvisha, Dharam, Hit, Lipsha. Bhavik, Isha, Rahul, Nishant, Nikhil. Okay, Jeet. Okay, do it. Okay, screen page change, sir. Okay. Now it's okay. Dharam,
मेन कहाँ पे देखा जाएगा अगर फंक्शन लिखा है तो उसका मेन फंक्शन बाकी जो टर्म्स है ना वहाँ आई प्लस हाँ हाँ वो तो इश्यू वो तो ले लेगा तो फंक्शन कॉल करेगा या फिर इसमें मल्टीपल वाले के अंदर क्या है एम फंक्शन में वो इधर आता है हाँ वो है हाँ रेवेन्यू एलिमेंट को कॉपी कर देना है बस ए ऑफ टी 0 1 0 0 हाँ दूसरा साइड रखो ये आप दूसरी अभी आता नहीं कब नहीं बस सुनो उसके बाद उसके बाद फाइनल क्वेश्चन Dharam, can I scroll down? Dharam, can I do scroll down? Is it okay? That is the final. Okay. So if anyone completed, please share it. वो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना मेन में तभी तो पास होगा प्राइस कितने यूजर है साइज तो हम क्यों रखोगे यार 50 मत करो ना मैं एंटर कर रहा हूँ ना साइड इसके साथ तो यहाँ पे हमने एल आर क्यों लिया तो जो ऑलरेडी एल आर को कहीं दिया है नहीं करना स्मॉल तो इसलिए वहाँ पे एल आर दिख रहा है जगह में तो ठीक है जैसे करो हाँ यहाँ यहाँ
कोई देखो मेन फंक्शन लीव टू डिफरेंट की जरूरत नहीं है। वो पहले डायरेक्ट पास कर देना। हाँ फिर साइड में कुछ हाँ रन करने का पता चला यहाँ पे किस तरह की ये नहीं होगा ये हो वर्ड की मर्ज करेंगे मर्ज सॉर्ट पास करना है दिस इन हाँ कॉमा यहाँ पे वो कैसे समझेगा कि ए एल आर को आपने यहाँ पे पास करेंगे ए की वैल्यू को बोलने देगा यहाँ है ए की वैल्यू क्या समझेगा ए स्टार्टिंग में जीरो पास कर पाऊंगा जीरो कर दूँ आर इक्वल टू मैक्सिमम है ना तो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू टेक द साइज ऑफ एरर वी हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एरर अभी तो पास कर जाएंगे साइज ना अभी तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज माइनस ना मतलब 6 मतलब 5 ठीक है उसके अंदर मतलब तो ये साइज निकालना पड़ेगा int of array size equal to size of array divided by size of your zero करते हैं ना साइज निकालने के कैसे मतलब array size निकालना है उसका साइज ऑफ array यहाँ पे तुमने यहाँ पे साइज क्या किया n t है ना तो यहाँ पे पास कर दो ना t minus 1 ना और यहाँ पास कर दो 0 हाँ यहाँ ए 0 पास कर दो हाँ एल इक्वल टू वाले 0 कर दो वो समझ जाएगा और इसको यहाँ पे इसमें थर्ड पास करना वो तो वहाँ से पास हो जाएगा हाँ आगे से ये तो ऑटोमेटिक आगे से ऑटोमेटिक पास हो जाएगा जब वही करेगा नहीं वो हटाओ हो गया था अब घर से नहीं लिखता है वो तो यहाँ से पास होगा ना अंदर से ही ले लेगा रिवाइज सॉर्ट पर लेके स्क्रीन कर लो क्योंकि बात है कि देखो कहीं एमएस लिखते हैं A1 completed online
प्रिंट नहीं कराओगे इसे? मेरे को मेन सेम सेम फंक्शन जो कैसे तो सही है ना? देखो यार आउटपुट क्या है वो देखना है, एरर क्या है वो फाइंड आउट करो। कहीं सिंटैक्स एरर नहीं होनी चाहिए। एरर क्या है? pointer it cannot convert into pointer. इसको अगर मैं डिफाइन करूं फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं है लोग फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन करना पड़ेगा ना अरे ठीक है उसको एडिटर में constant expression required, constant expression मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ। तुमने भी ऐसे ही लिखा ना सर? हाँ
अरे पहले हमने तो बाद में किया और वो तो कहीं से निकला है। हमने डायरेक्ट लिखी है ट्रेन करने के लिए है ना ये हमने बैक्टीरिया है उसको बात की ये लिया ऐसे ऐसा वो पता है उसके बाद उन्होंने ये प्रिंट एरे लिया है जो यहाँ पर प्रिंट कर दिया उसके बाद हमने जो नॉट कर एरे जीरो कर दिया प्रिंट एरे उन्होंने इसलिए वो प्रिंट कॉमा नहीं है माना तो सही है गिवन वाला वो हटाओ ऊपर वाला कमेंट में डालो तो जो रहना पड़ेगा नहीं है नहीं ये इसमें सी प्लस प्लस में करना पड़ेगा जब सी और सी प्लस में करते हो ऐसे जोड़ नहीं करना पड़ेगा Anyone completed? One, two, 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 2, 0. बस काफी है बहुत हो गया divided by size of a of 0. जब इसका साइन दिया क्या जो तुमने को एडिट कर रहे हैं नाम ये फिक्स कर क्या करो तो इसकी तरह भी करना है सब सही रहता है ये कर
ये पास करो प्रिंट प्रिंट एरे लिखना है तुम्हें तुम्हारे एरे क्या करना है सबसे पहले मैंने प्रिंट एरे कॉमा एक कॉमा एक कॉमा एरे नेम एक कॉमा और एरे साइज तुमने ये पास किया ये साइज ठीक है अब इसके लिए फंक्शन को प्रोवाइड एरे यहाँ पे तुम्हें क्या पास करना होगा एरे और साइज प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं ना हाँ देखना सबको अरे यहाँ पे एक पास में इंटीजर एरे पास में है ना यहाँ पे तुम क्या है ये जो देगा एरे आ रहा है ना यहाँ पर ए ऑफ साइज डिफाइन करना होगा कॉमा और उसके बाद तुम्हें क्या करना है इंट साइज तुम्हें इसके साइज करना है तो कॉलम इसके अंदर लिख दूंगा इंट आई फॉर आई स्टार्टिंग करना है तो आई इक्वल टू 0 आई लेस देन size I plus plus and e of I plus okay and is the okay